اچھا السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہم اپنے ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خاص طور پہ ہمارے جو بیرون ملک ہمارے دوست ہیں جو میرا چینل ڈگڈگی دیکھتے ہیں, سب کے لیے بہت شکریہ, بہت تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگ ہمارا چینل دیکھتے ہیں. ہمارے چینل کو اور بٹن دبانا ہوتا ہے نا, وہ آخنا ہوتا ہے جڑی تھلے اپنا گھنٹی جی نہیں گھنٹی جی ہوں ضرور دبانا, کیونکہ اس واسطے کہ تسی اگر دباؤ گے نا سانوں پتہ چل جائے کہ تسی دیکھ رہے ہو. یہ دیکھتے رہنا, بڑی محبت بڑا پیار, تسی جنہ دے رہے ڈگڈگی نو یہ ہور محبت پیار دے دبانا او والا بٹن جڑا نا. ہاں ڈگڈگی بج رہی ہے اور انشاءاللہ بجتی رہے گی, لیکن وہ دبا کے ضرور. مہربانی تاری پتہ کی گل پھر. ہاں السلام علیکم, خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات, آج شو میں ہم نے دعوت دے رکھی ہے لاہور کے پیشہ ور بھکاریوں کو اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ان کے ٹھیکیدار صاحب. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کریں, ایک چھوٹا سا پیکج پیش خدمت. ماہ رمضان میں گداگروں کی بڑی تعداد شہریوں پر یلغار کر دیتی ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں بھکاری مافیا موجود نہ ہو. کہیں بھی جائیں یہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ملتے ہیں. کہیں کوئی عورت بچہ اٹھائے لوگوں کا دل پگھلانے کے لیے دہائیاں دیتی نظر آتی ہے, تو کہیں ٹریفک سگنلز پر بھکاری کار سواروں پر دھاوا بولتے دکھائی دیتے ہیں. بھیک مانگنے کے لیے بچوں کو نشہ آور سیرپ پلا کر بے سدھ کر دیا جاتا ہے. خواجہ سرا بھی بھکاریوں کے اس غول میں شامل ہو گئے ہیں. ہمیں صدقہ خیرات دیں یا نہ دیں, ہم پھر بھی دعا کریں گے. جن کا حق ہے ان کو بھی دیں. میں شہروں پہ کھڑی ہوتی ہوں, بچے لے کے عورتیں آ جاتی ہیں مانگنے کے لیے. ان کے گھروں میں شوہر بھی ہوتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, پاؤڈر بیچتے ہیں, پیتے ہیں, لیکن یہ کیوں مانگنے کے لیے آتی ہیں؟ اپنے شوہروں کو کام نہیں کرنے دیتی کیوں؟ ہم لوگ مانگنے والے فقیر ہیں, ہم لوگ خواجہ سرائے, ہم لوگوں نے تو مانگنا ہے, مانگ کے پیٹ بھرنا ہے. شہر میں ایسا کوئی مقام نہیں جہاں گداگر نہ ہوں. یہ نواحی علاقوں اور مختلف دیہات سے آتے ہیں اور لمبی چوڑی دہاڑی لگا کر جاتے ہیں. یہ لوگ محنت مشقت کرنے والوں سے زیادہ کما لیتے ہیں. کیمرہ دیکھتے ہی مانگنے والوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ پیشہ ور بھکاری ان کا کہیں کھڑا ہونا محال کر دیتے ہیں. انہی میں جو لوگ ہیں نا, جو چوریاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو دیکھتے ہیں, جو موبائل سنیچر, وہ لوگ سارا کچھ واچ کر کے نا, ٹھیک ہے نا, تو یہ لوگ, ان لوگوں نے کاروبار بنایا ہے, چھوڑے ہوئے ہیں لوگوں نے. یہ بیگر جو ہے نا دوسرے شہروں سے لا کے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ سب سے آسان طریقہ ہے یہ مانگنے کا. جو بھکاری ہیں یا ایسے لوگ جو بے روزگار ہیں, جن کی مجبوری ہے وہ نہیں ان کا روزگار ان کو ملتا, تو ان کے لیے کوئی ایسا پیکج بنائیں. ان کے جو بچے ہیں کم از کم ان کو تو فیسیلیٹیٹ کریں. شہر کے اہم مقامات پر یہ گداگر جہاں ٹریفک مسائل پیدا کرتے ہیں, وہیں موقع ملنے پر یہ جیب تراشی, موبائل چوری اور دیگر جرائم کرنے سے بھی نہیں چوکتے. بھیک کا دھندا کرنے والے بیشتر گداگر جعلی معذوروں کا روپ دھارتے ہیں. یہ لوگوں کو دھوکہ تو دیتے ہی ہیں, مستحق لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں. او مہربانی بھائی جی, تسی بلایا سانو, ورنہ انہاں غریباں کون پوچھتا جے؟ آپ جو پوچھ رہے ہیں آج کل انہیں بہت سہولتیں سنا دے رکھی ہیں. ایسی ویسی سہولت تواڈے کول کی ہو سی؟ کیا کیا سہولت دے رکھی ہے؟ ماشاءاللہ گھر لے کے دیتا ہے, وچ اے سی لگے ہوئے نے. ہاں جی, بہترین انہاں دے بیڈ روم نے. یہ شفٹاں چینج ہوندی رہندیاں نا, جیڑی سویر تو لے کے 12 بجے شفٹ ہے نا, وہ پھر گھر چلی جاندی ہے, اگلی شفٹ آ جاندی ہے. یہ سمجھ لو میری ATM مشیناں نے. اچھا یہ بھی تمہیں میں دس دیں, ہر اشارے تے ساڈے بندے بھی ہوندے نے کہ کوئی انہاں نال بدتمیزی کرے نا باہر کھڑ لیندے انہاں. اچھا اتنے کریک ڈاؤن ہوتے ہیں. یہ بدبخت اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے, ہر سال ٹھیکہ اس کے پاس ہوتا ہے. یہ بھکاری مافیا کا سرخیل ہے یہاں پہ. یہ ٹھیکہ دیتا کون ان لوگوں کو؟ یہ بس پتہ نہیں, میں بھی جاننا چاہتا ہوں یہ کون کرواتا ہے یہ سارا کچھ. لیکن جو کچھ ہوتا ہے پولیس کی ملی بھگت سے ہوتا ہے. جناب اگر پولیس نہ چاہے تو یہ مافیا سروائیو نہیں کر سکتا. نہیں سر نہیں, انہاں دی محبت ہے, اور کوئی گل نہیں. محبت, ہاں محبت ہی ہوتی ہے یہ, اور کیا ہوتا ہے. کی تھوڑا بہت لے لیندے تے تہاڈا کی جاندا ہے؟ سر اشاروں پہ اس قدر پرابلمز ہوتی ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. گاڑی کے بالکل نیچے ٹانگیں ہوتی ہیں ان کی, ادھر سے اشارہ کھل جاتا ہے. حشرات الارض کی طرح یہ یلغار کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے کوئی بچنے کا طریقہ نہیں. دب 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 دب, سامنے سے, سائیڈ سے, دائیں بائیں, ہر طرف سے حملہ. چلو تیرے ارگا کیڑا دیندا بادوں میں دئی جانا. میں بالکل نہیں دیتا. پاکستان بہت ودیا ہے لیکن لاہور لاہور ہی ہے. وہ کہندے نہیں جنہیں لاہور نہیں منگیا وہ جمیا ہی نہیں. لاہور نہیں منگیا. تم کہاں سے ہو موٹے؟ میں مظفر گڑھ. تم مظفر گڑھ؟ جی ہاں مظفر گڑھ. کس تحصیل سے ہو؟ جتوئی. تو یہاں کیا کرنے آئے؟ ملتان کیوں نہیں چلے گئے؟
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥਾਂ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹਨ ਪਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇੱਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। जितने दिहाड़ी को ज्यादा देने ना उतनी ये साकू देने। इसके हुस्न सलूक से बहुत खुश हो तुम? भाई जान आदे पे ना कि तो एसी लगा देते ये जेड़ा बंदा फजर 7 बजे उठी के शाम 4 बजे थोड़ी मंगसी एसी दा क्या फायदा? क्या फायदा वाकई। अच्छा आप कहाँ से हो? मैं तांदला मंडी देखी है तुसी? अच्छा, तांदला वाले से हो? हाँ जी तांदला वाला। तो फैसलाबाद क्यों नहीं चले जाते? ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੁਗਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਖਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ। ਕੌਣ? ਬਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨੇ ਮਾਨਾ 50,000 ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। तुम्हारी तरह करप्ट नहीं है, वो एक पढ़ा लिखा बाशऊर पाकिस्तानी है। ही वास्ते ताते बिसार को लवे गड्डी ई करके जेड़े लेने आखने ना इफ यू डोंट माइंड इमें कड़क नोट आमने। माशरती नासूर बन चुके हैं, ये मुनशियात का काम भी करते हैं, ये कुछ और भी धंधों में मुलव्वस हैं। आजकल इलाकों के मुताबिक ये बेकारी। नशा कौन सा करते हो मोटे? तो पता पैसा तो सर्कल होना क्या नहीं, डब्बी नहीं मिलती एक वो क्या दिन समाध पाउंड वो सिंह दा बसी में सुकून बड़ा आंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ। लानत है ऐसे सुकून पे जो सीधा तुम्हारे दिमाग को इफेक्ट करती है। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਸੁੰਘਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬੂਟੀ ਬਾਟੀ ਪੀ ਲਈਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। मैं जनाब छोटी हाल का रहने वाला मां अच्छा, और बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, कोई नौकरी नहीं मिली। क्या आप पढ़े लिखे कितने हो? मैं जनाब BA किया है। ये किया हुआ? हाँ जी। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ CV ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, BA ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਰੋ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਨੇ 50,000 ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। इसे बिजनेस मैं सैट नहीं होया और मैं अलहमदुलिल्लाह सैट हाँ। मेरे बच्चे जेडे ने वो भी वैल सैटड ने। तो कैसे गुजरती है महंगाई में? और जनाब जो मर्जी महंगा हो जाए सानू कोई परेशानी नहीं। क्यों? ये जेड़े साडे सेब साहब है ना ये महंगाई दे हिसाब दे नाल हर शय दे विच इजाफा कर देंगे। यानी इंडेक्सेशन देता तुम्हें? हाँ जी। जो रियासत नहीं देती वो ठेकेदार देता है। ये इन्हां दी खूबी है जड्डां दी महंगाई थई है सारे दिहाड़ियां वध गए। भाई जी मैं माई बाप जो है फिक्र तो मैं ही करनी है ना दी। अच्छा जी, ये चंद दिन पहले मैं क्लिप देख रहा था, ईरान से पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में स्मगल हो रहा है और स्क्रीन पे इस वक्त चल भी रही है। इसमें किस हद तक बड़ी आम शख्सियात पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी उनकी नाक तले ही होता है और इस सारे सिलसिले का करता धरता भी वही है। इमरान खान को इस पर भी गौर व खौज करना चाहिए। पड़ोसी मुल्क ईरान से पेट्रोल और डीजल की यौमिया स्मगलिंग 6 लाख लीटर तक पहुंच गई है। कराची बिलखुसूस लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी नोजल लगाकर खुलेआम ये तेल 90 से 92 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। तफ्तान बॉर्डर से पूरा बलूचिस्तान गुजरते हुए ईरानी तेल की कराची आमद मुतालिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, जो मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं। आप न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक तेल माफिया ने मुट्ठी गर्म करके पुलिस की आंखें बंद करा रखी हैं। तफ्तान बॉर्डर से ईरानी पेट्रोल और डीजल ऑयल टैंकरों के साथ साथ मुसाफिर बसों की छतों पर रखे गैलन्स में भी आता है। कोयटा से कराची आने वाली गाड़ियां हब चौकी से ज़िला गरबी के रास्ते लियारी के साथ साथ शहर कायद के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में भी पहुंचती हैं। अगरचे ईरान से पेट्रोल तो बड़े अरसे से बलूचिस्तान में आता था, लेकिन अब ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि ख़ास तरह की कोचेस बनाई गई हैं जिनकी पैसेंजर सीट्स के नीचे ख़ास तरह के टैंक्स बने होते हैं, जिनमें ख़ास तौर पे मोबिल ऑयल और डीज़ल जिसकी कमियाबी है कराची और पंजाब में उसको भेजा जाता है और वो स्कॉट फ्री गुजर जाते हैं। पता क्यों? कि उनकी चेकिंग भी उन्हीं लोगों ने करनी है जो इनकी चेकिंग करते हैं। वाह। इसलिए क्रिमिनल्स मौजूद हैं। क्रिमिनल्स की वजह से ये मुल्क भी सफ़र कर रहा है, ये सोसाइटी भी सफ़र कर रही है। पता नहीं हम कब तक यरगमाल रहेंगे इन चोर के पुत्रों के। पाकिस्तान ने इस मुतालिक ईरान से बात की है और ईरान ने मिलकर पेट्रोल स्मगलिंग पर काबू पाने की यकीन दहानी कराई है। तो जी आप कहाँ से हैं बीबी? सब बादर लाहौर तो अल्लाह खैरा करे ताडियां
ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਵੋ ये वाकई नशैन है, नशेइयों की तरह बोलती है। ओए तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? तुम्हारा घर बार कोई नहीं है? घर वाला है कि भाई नाल तुम्हारे बहन भाई कहाँ बड़ी हुई हो? क्या किया तुमने? ये क्या भिखारी क्यों बनी हुई हो? ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ? सर बहुत गुस्सा आता है जब छोटे छोटे बच्चे लेकर सड़कों पर भी मांगती हैं। इस बात पर देख लेना तुम कुत्ते की मौत मरोगे चौधरी। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੀ? ये जो बच्चों को तुमने इस काम पर लगा रखा है, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੁੱਤਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। उनको तालीम क्यों नहीं देते हो? ਮੈਂ ਜੰਮੇ ਨੇ, मैं सहूलतां दे रहे हैं, और की दें? सर ऐसा लगता है जैसे सोए हुए हैं बिल्कुल। बच्चे बेहोश किए होते हैं सर, वो गोद में जो बच्चे उठाए होते हैं उन्हें भी नशा दिया होता है। इन्फेंट्स, वो जो शीरखार बच्चे होते हैं जी, उनको ये किराए पे लेके आते हैं 1500 2000 रुपये डेली दिहाड़ी पे जी, और ऐलान करती फिरती हैं औरतें कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, मेरी भाभी के यहाँ भी बच्चा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो। बहुत ही शीरखार, चंद दिन का बच्चा 5000 रुपया दिहाड़ी पे। अच्छा, रेट तुसी भी लेंदे फिरदे हो? आपने किन्ने फकीर ने? मैं जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट रेट लेता रहता है, उसको पता है। मैं कोई चैनल दे विच मसला तो नहीं बनया आ? क्यों? दसो तुहानू अपने फकीर दिया। मैं अपने कारोबार को आग लगाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, ये हराम नहीं करूंगा। मैं कहना तुहाडी रेटिंग इत्थे ले जाणगे। ये किराए वाले भी जो है मजबूरी में लेते हैं, वरना अगवाशुदा बच्चे हैं जो हॉस्पिटल से न्यू बॉर्न बेबीज जो गायब हो जाती हैं, वो कहाँ जाती हैं? हमारे मुआशरे में जहां और बहुत से रिश्ते हुए नासूर हैं, वहीं एक गदागरी भी है। गदागरी एक पेशे की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसे फरोग देने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं कि इन्हें सोचकर ही इंसानियत की रूह कांप उठती है। कुछ अरसे से शीरखार बच्चों को भी गदागरी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। 1 से 2 साल के बच्चों को उठाए गदागर औरतें जब दस्ते सवाल दराज करती हैं तो ये कमाई का एक तीर बहदफ नुस्खा बन जाता है। हकीकत में इन शीरखार बच्चों को नशावर इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे वो बेसुध रहते हैं और गदागरी के अमल में ज्यादा बेहतर अंदाज में काम आते हैं। ऐसी भी इत्तलात हैं कि अक्सर गदागर औरतें इन शीरखार बच्चों को किराए पर भी हासिल करती हैं। बच्चों का अगवा और फिर उन्हें गदागरी के लिए इस्तेमाल करना एक पुराना तरीका वारदात है। इन मजलूम बच्चों को अपाहज बनाकर उनसे भीख मंगवाई जाती है, हत्ता के बाज़ बदकिस्मत बच्चों की आंखें तक निकाल ली जाती हैं और इससे धंधा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भीख मांगना काबिले सजा जुर्म है। पंजाब हुकूमत ने इस मकसद के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी बनाया है, मगर इसके बावजूद गदागरी की लानत से छुटकारा नहीं पाया जा सका। जो इनकी अयानत करते हैं पुलिस वाले जी, या वो लोग जो इनके पीछे सिफारशी हैं, अगर एक लम्हे के लिए उस माँ का चेहरा ज़हन में ले आएं जिसका बच्चा अस्पताल से अगवा किया गया हो, शायद ये काम कभी ना करें। ये अपना थोड़ा हकीम नहीं जी, ये तुसा अगर सागु दियो सिर्फ इंदी एक अख कढ़नी है ते एक बांह तोड़नी, 5000 रोज दा कारीगर है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ 10000 ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। क्यों मेरी रकम डेगन ने 15000? नहीं 15000 कैसे भी? ਅਰੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੂੰਗਾ ਉਸਤਾਦ? हाँ जी हाँ। ਓਏ ਹੋਏ ठीक है, कोड़ा बन गया। ਇਹ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। पढ़िया लिखा बंदा पैसे वाला ज्यादा डरता है। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਇਲਾਮੀਆਂ ਤਕੱਬਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ 10-20 ਰੁਪਏ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾ ਲਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ 200 में। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜੀਵੇ ਜਿੰਦ ਜਵਾਨੀ। ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਹਡਿਆਰੇ ਤੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਵਰਗਾ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕੱਢ ਦੇ 200 ਰੁਪਈਆ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕੋੜਾ। प्रोफेसर साहब ने जड़े इन्नी इज्जत ना रुपये 10-15 रोज का कमा सकते हैं। मैं एक्चुअली मांगने वाला नहीं हूँ। आई एम गोइंग टू कराची। 2 टिकट्स ले दे माई वाइफ और 2 बर्गर ले दे, प्लीज गिव मी। आई एम गोइंग टू कराची राइट। प्रोफेसर साहब, ए वैसे कराची वाला फिरा तुसी रोज ला सकते हो, डील करनी मेरे नाल। अच्छा, बीवी वाली सहूलत भी दोगे? डेसन ठहर जा, नहीं दिया बच्चे।
अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ रहिए। आप अभी अबू धाबी की बात कर रहे थे, रोज़ा कुशाई ना, वहाँ बादशाह की तरफ से ऊँट की बिरयानी, बकरे की बिरयानी, बहुत कमाल का। अच्छा, वहाँ पर कोई बेगर नजर आ जाए तो उससे फौरन अरेस्ट कर लेते हैं, उससे फौरन शादी कर लेते हैं। नहीं, फौरन अरेस्ट। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲ, ਇਹ ਬਾਗੀ ਪੁੱਤਰਿਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वो पते की बातें बता रहे हैं आपको। ਇਹਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਆਸਤੇ ਬਿਗੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मायरा खान फ्रॉम टीम खबरदार। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, उनके लिए मेरा पैगाम है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें, और मजीद इसमें कुछ तब्दीली करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू। वेलकम बैक। पिछले दिनों कराची में एक बड़ी वबा थी कि पढ़े लिखे, जैसे आप बता रहे हैं, पेट्रोल मांगते हैं, मियाँ बीवी, अच्छी खासी गाड़ी उनकी, सुपर स्टोर पे जाते हैं या आम शॉप पे, कोई भी चीज़ खरीदी तो 1000 रुपये की चीज़ खरीद ली, 500 की, 600 की, 5000 का नोट देते हैं, बाकी चेंज ले लेते हैं, और सारे जाली नोट, 5000 का नोट जाली। अब नालायकी तो उसकी है जो ले रहा है, उससे तजुर्बा होना चाहिए, बल्कि इसकी कोई मशीन भी होती होगी। सही मशीन आ गई है, चोरी साहब घर रखी हुई है मशीन। अच्छा, सागु दे बंदन जाली नोट, वो में करके लोट अंदर देवा ना, एक लाइट जल्दी है नीले रंग दी। अच्छा, वो नीले रंग दी जेड़े लाइट जल्दी है, नोट सही पता लग पे भी 1 नंबर या 2 नंबर। ये लुमिनस होती है ना, इसका फ्लोरेसेंट वो बताता है कि असली है ये नकली है, वरना वो रोशन हो जाता है। भाई जी 2500 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਫਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਝੋਲੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। भाई कमाल है, चौधरी तो इस कदर बावसीला शख्स है। भाई जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਐਂਕਰ में प्रमोट करना, मैं बड़ी तरक्की करा। क्या तरक्की करो? इमरान तो मैंने स्टेट बैंक का गवर्नर ला देवे। आप अभी अबू धाबी की बात कर रहे थे, मैं काफ़ी अर्सा वहाँ रहा हूँ। रमज़ान में खुसूसन मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे रोज़ा कुशाई ना, वहाँ बादशाह की तरफ से ऊँट की बिरयानी, बकरे की बिरयानी, बहुत कमाल का। तो वहाँ पर ये मायूब नहीं समझा जाता, बड़े शुरफा अशराफिया के लोग जो हैं वो जाके तो रोज़ा कुशाई करते हैं, वो रोज़ा अफ्तार के अगर आप इनकार करें तो ये मायूब समझा जाए। जी, बुरा समझते हैं। अच्छा, वहाँ पर कोई बेगर नज़र आ जाए तो उससे फौरन अरेस्ट कर लेते हैं, उससे फौरन शादी कर लेते हैं। नहीं, फौरन अरेस्ट। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲ, ਇਹ ਬਾਗੀ ਪੁੱਤਰਿਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वो पते की बातें बता रहे हैं आपको, वो समझा रहे हैं, बहुत सौ का भला हो रहा है। ਇਹਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਆਸਤੇ ਬਿਗੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। वो इनको ले जा के बेगर्स को एक जगह उन्होंने एक डॉकयार्ड बनाया हुआ है, वहाँ बंद कर देते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि इनकी इस्लाह हो जाए। उसके अलावा जो लोग मस्कीन हैं, जो मुस्तहकीन है, हाँ जी, जो साइलीन हैं या मसाकीन हैं, उनको वो खाना प्रोवाइड करते हैं, कपड़े प्रोवाइड करते हैं और उन्हें किसी ना किसी काम की तरगीब देते हैं। वो अबू धाबी में ये काम उन्होंने बड़े अहसन तरीके से किया है। अर्ज ये है कि यहाँ पर भी ये होना चाहिए, कानूनी तौर पर तो ये जुर्म है। और पंजाब में भी बेगर होम्स हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ना सिर्फ है बल्कि कानून है। ये पैन हैंडलिंग आपके यहाँ जुर्म है जी। ये कितना बड़ा थप्पड़ है यहाँ की हुकूमत के मुंह पर, ये इनके सामने ही होता है और ये कर ही कुछ नहीं सकते। अपने चैनल तक उसको नौकरी छोकरी दो, छोड़ दे सुमंगना। आओ सारे आ जाओ, मैं तुम्हें नौकरियां दूं। ठीक है, जो सागु तुम मिल दे वो दो। वो तो तुम बेगैरती से कमाते हो। हाँ। यहाँ गैरत के साथ कमाओगे, कम कमाओगे। देखो उतना तो होना चाहिए, को 5 घाट मिले। मैंने कहा है ना, गैरत गिरवी रखकर तो तुम करोड़ों कमा सकते हो, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तू बगैरती ठीक है। ये देखो ना, इस तरह के आप सब सारी रात फैमिलीज को देखा है, लिफाफे बना के बाप जो है वो मार्केट में जाके दे रहा है और इस तरह वो खुशहाल हो गए। देखिए अल्लाह बरकत डालता है फिर इस बरकत। जो आप तो ये लिफाफे बता रहे हैं ना, मैंने देखा पट्टियां नहीं होती, पट्टियां जी जिसमें समोसे बनाए जाते हैं जिसके, और मैंने करोड़पति होते देखा लोगों को। छोटा समोसा, हाँ जी, ये जो बंगाली समोसा है जी, और जो रोल्स होते हैं और वो इतने लजीज, इतने शानदार क्रिस्पी होते हैं, क्रंचू,
इतना लुत्फ आता है। अच्छा फकीरां दे मुंह च पानी आ रहा है, करांचू नहीं कहना साहब, इसलिए कि ये हलाल का पैसा है, इन्हें क्या पता उसका। इनके मुंह को लगा ही नहीं हलाल। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मेहनत करो तो अल्लाह पता नहीं किस तरह आपकी काया बदल दे। जड़ी जड़ी शय असा खाने ना तो कुछ सारी जिंदगी नसीब नहीं थी सकती। अच्छा मैं एक मशवरा दूं तुम्हें। हाँ जी। तुमने जिंदगी भर हलाल चूके खाया नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि उसकी लज्जत क्या होती है। तुमने चीनी चखी नहीं, तुम्हें क्या पता रसगुल्ला कैसा होगा। अच्छा भी गाल ही बंदे दी ठीक है वे भाई लाला साकू क्या पता, अल्लाह जान दे सारे को तो ए बेगैरत दा पुत्र करवेंदे जो वही ना, देखो तुम्हें क्या पता कि हलाल की दाल रोटी में जनाब, हलाल के साग में खुश्क रोटी और आधा मग दूध में क्या लज्जत है, तुम्हें क्या पता इसका। उतरे दी गल्लां च आ गए ना, भुखे मर सोए दस दिया मैं तुहानू। ओए भूखे मर जाना लेकिन गैरत से मरना, बेगैरती की जिंदगी। टीपू सुल्तान को क्यों भूल जाते हो यार, हर दूसरे तीसरे दिन हम उसका तस्करा करते हैं। ये भी गीदड़ की 100 साला जिंदगी है, इससे बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी गुजारो, लेकिन शेर की तरह गुजारो। सुल्तान आली, मीर सादिक ने कले के दरवाजे खोल दिए, कंपनी के सिपाही कले के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मीर सादिक गद्दार, तू कभी मैसूर का सुल्तान नहीं बन सकता। तारीख तुझे हमेशा गद्दार के नाम से याद रखेगी। तुम लड़ाई जारी रखो, हम खुद मैदान में आ रहे हैं। जहां भला लॉर्ड वेजली का कासिद आया है। कासिद को पेश किया जाए। कासिद को अंदर भेजा जाए। मैसूर के सुल्तान के लिए लॉर्ड वेजले का पैगाम है, अगर सुल्तान अपना शिकस्त तस्लीम करता है तो उसे जान की अमान होगी। जाओ अपने लॉर्ड से कहो, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। इस तरह शेर मैसूर चौथी लड़ाई में शहीद हो गया। लॉर्ड वेजले ने टीपू शहीद को बेमिसाल बहादुरी और गैरत के एजाज़ में सल्यूट पेश किया। 2 दिन बाद सुल्तान फतेह अली टीपू के एक वफादार ने मीर सादिक को कत्ल कर दिया और सुल्तान फतेह अली टीपू का कौल सच साबित हो गया कि मीर सादिक कभी मैसूर का सुल्तान नहीं बन सकेगा। जब तक आज़ादी के मतवाले वतन की हिफाजत में जान देते रहे, ज़माना सुल्तान फतेह अली टीपू को तब तक याद करता रहेगा। 1770 में रॉबर्ट क्लाइव एक बिल्कुल ऐसे मुश्तंडा आदमी था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत में यहाँ आया, वापस चला गया लंदन। उस पर केस चला कि तुमने ये पैसा इतना कहाँ से इकट्ठा किया। तो यूके पार्लियामेंट में ये केस चला। उसने आयरलैंड में प्लासी के नाम से एक बहुत बड़ी एस्टेट बनाई। तो जब उस पर केस चला तो उसने आखिर में कहा कि मेरा सारा पैसा ले लो, खुदा के लिए मेरे पास इतनी सी इज्जत तो बची रहने दो जो मेरी थी। तो रोता हुआ वो वहाँ से चला गया, उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं हुआ। यानी कि चोर उचक्कों को भी अपनी इज्जत का एहसास था। तो तुम लोग ये भी नहीं सोचते कि इंसान अल्लाह ने पैदा किया, अशरफुल मखलूकात तुम्हें बनाया। भाईजान मैं तो आज को बाद एक काम कोई ना करे सा। बड़ी बात है, बड़ी बात। अपना कोई शलवार कमीज में को मंगवा दे, ये मैं लहे ना एडा उन्ना को नहीं वो हैगा कर ले कोई। काम, तेनू इन्हां दा शलवार कमीज नहीं होना। नहीं, मैं तुम्हें शलवार कमीज नया फिल फॉर बनवा दूंगा। तुम प्रॉमिस करो कि तुम इस पर लानत भेजो। लानत जनाब, लानत है बेशुमार। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बब्बू राना और डुगडुगी देखने वाले तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने प्यार से हमारे शोज़ देखते हैं और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं हमारे शो देखते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। तो आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा डुगडुगी चैनल सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। डुगडुगी बज रही है और बजती रहेगी। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आइए सुनते हैं।
हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, हुजूर आप जो सुन लें तो बात बन जाए, हुजूर आप जो सुन लें तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, हुजूर आप जो चाहें तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो चाहें तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, मैं शाद शाद मरूंगा अगर दमे आखिर, मैं शाद शाद मरूंगा अगर दमे आखिर, ज़बां पे जारी मुहम्मद का नाम हो जाए, ज़बां पे जारी मुहम्मद का नाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, नजर से चूम लूं एक बार सब्ज गुंबद को, नजर से चूम लूं एक बार सब्ज गुंबद को,
बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मज़ा तो जब है फरिश्ते हश्र में कह दें, मज़ा तो जब है फरिश्ते हश्र में कह दें, सबीह मिदहते खैरुल अनाम हो जाए, सबीह मिदहते खैरुल अनाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पैकेजेस मॉल के बाहर रात को गोरे चिट्टे खूब रू लड़के ख्वाजा सरा यानी खड़े होते हैं। यार तू टाइम में घर क्यों नहीं जाता है? इन्हां दा रूट पैकेजेस मॉल वाल है ही नहीं सर। नहीं नहीं, वाल्टन रोड से जा। कल मैंने वेखे खुसरे ने कूजा का सुना रहा सी। खुल जा डुगडुगी। हाँ 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 हाँ, मैं कोई बुजुर्ग नहीं, मैं सलीम अलबेला वा। डुगडुगी चैनल देखने वालिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया। डुगडुगी चैनल ये साडा नहीं, ये ਤੁਹਾਡਾ है। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बड़ी बड़ी मज़ेदार गल्लां मिलणगीਆਂ। और सब्सक्राइब करें और देखें डुगडुगी। डुगडुगी बज रही है और हमेशा बजती रहेगी। वेलकम बैक। आप साहब आजकल एक नया ग्रुप भी है, साफ सुथरी गाड़ी में मियाँ बीवी बैठे होते हैं, बुरके वाली बीवी, पीछे 2-4 बच्चे बैठे होते हैं। पेट्रोल डलवा दें, पेट्रोल डलवा दें। ये बिल्कुल। अच्छा, मेरे साथ दुबई में भी ये लोग, मैं मिला हूँ इनसे, अबू धाबी में भी मिला हूँ और यहाँ लाहौर में भी मुझे मिल गए। यानी ये एक पूरा ट्रेंड चलता है। सुना, बहुत सुने ये शिकायत के जी 500 का पेट्रोल डलवा। अच्छा, आप लोगों के साथ जब तशबीह दी जाती है पीटीआई हुकूमत को तो कैसा फील करते हो? सही अल्लाह साकू माफ करे, एडी शर्म आंदी है, मतलब क्या दसा भी किना फुकरा को साडे नाल मिलेंदे पए। हाय हाय, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਈਦ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਈਦ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਵੈਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। हाँ जी, इन्होंने रिश्ते भी आपस से होंगे ना। तो ये जो ऑलरेडी उसकी बीवी है, एक तलाक दे के बल मेरे नाल करवे सी ना। सिस्टम ही नहीं चलता। और ये वाकई करते हैं इस तरह। ये कॉलेज रोड पे मेरा रोज का रास्ता है, घर है मेरा उस तरह। तो इस तरह की एक को मैंने पूछा, मैंने कहा तू वो फलां के साथ क्यों खड़ी थी रात? जी मुझे बहुत तंग करता है ये वो। मैंने उससे जरा पूछ ली ये बात। वो कोई 1000 काम होते हैं, कोई 1000 बातें वो कर रही होगी, आपने उससे उचेचा क्यों पूछा? मुझे कॉलम लिखने के लिए जरूरत होती है कई ऐसी चीजों का हकीकी मतलब यकीनन ऐसा ही है। मैं एक बार नोमैड्स के साथ रहने चला गया बंद रोड पे, पक्खीवासों के साथ। पक्खीवासों के साथ, वो हमारे दोस्त थे, उनका सोशियोलॉजी का फाइनल पेपर था। उसने कहा यार क्या करें, मैं कहा चलो चलते हैं। वो इनसे जरा डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, लेकिन चोर होते हैं, बहुत जराइम पेशा होते हैं। वो यही पता चला उनके यहाँ ऐसे अजीबो गरीब मामलात का पता चला। और अपना सारा सामान उनके पास होता है, सोना चांदी की शक्ल में वो अपनी नकदी अपने पास रखते हैं। तो बस ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह फेरा उनका। लेकिन उनकी जो लड़कियां होती हैं वो बिल्कुल कॉपर कलर की, ब्रॉन्जी और बड़ी कॉपर ना कहे, ब्रॉन्ज कह सकते हैं आप। कॉपर नहीं होता वो, ब्रॉन्ज जो होता है ना, कांसी, कांसी का रंग। हाँ वही कह रहा हूँ। तो
ये केड़े कॉलम च जिक्र होना कॉपर कलर और फलाना कलर? यार ये पढ़े लिखों की बात है, तुम्हें नहीं पता? वो औरतें जो हैं उनको वो शहरों की तरफ भेजते हैं, वो 50 काम उल्टे सीधे। तेरा कॉलम को बंदे तो नहीं लिखा जाता यार उन्हें बात कर लें दो जी, मुकम्मल कर। ये पैकेजेस मॉल के बाहर रात को गोरे चिट्टे खूब रू लड़के ख्वाजा सरा यानी खड़े होते हैं। यार तू टाइम में घर क्यों नहीं जाता है? इन्हां दा रूट पैकेजेस मॉल वाल है ही नहीं सर। नहीं वाल्टन रोड से जाता। ये वाल्टन रोड से मैं जाता हूँ, पीको रोड से आगे। अच्छा तेरी गड्डी जड़ी है सीधी सही सलामत घर पहुंच पेंदी है? अल्हम्दुलिल्लाह रोज जाता हूँ। तू तो इडू दे दवे ने। कल मैंने वेखे खुसरे ने कूजा कर सुना रहा सी। जिस रूट की ये बात कर रहे हैं ना, वो समझ में आ रहा है। डिफेंस से गुजर के ये वाल्टन रोड लेते हैं, अब बड़ी पुल बन गई है, उसे क्रॉस करके सीधा पीको रोड और हमदर्द रोड से होते हुए अकबर चौक से लेफ्ट हो जाओ, सारी कॉलेज रोड। पढ़े लिखे बंदा तू की फकीरा दी फोला फाली करदा है रात को? बहुत अच्छी बात है, फकीरों की फोला फाली करता तो है ना कोई। तो जनाब मेरी हिस्ट्री बड़ी यादगार है। क्या है तुम्हारी हिस्ट्री? मेरे दादाजी जेड़े सन वो अंग्रेज आर्मी च रिटायर हुए सन। ये क्यों करते रहते? मुझे लगता है इनके दांत नहीं है। ऐसी गल नहीं है, लड़की इन्होंने कहो मेरे नाल मेरी हिस्ट्री लिखन। पुत्र हिस्ट्री ना कॉपर कलर चाहिए होता है। कॉपर नहीं, ब्रॉन्ज कलर की बात हो रही थी। ब्राउन्स कलर चाहिए होता है। ये दरअसल कलर होता है टैन। टैन कलर कहना चाह रहा था। ये टैन किया होता है, यूरोपियंस जाके शर्मुल शेख अपने आप को टैन करती हैं। ये हमारे यहाँ आबादी को नेचुरली अल्लाह ताला टैन पता कब करता है? आप कभी देहात में जाए ना, कटाई के मौसम में गंदम काला, नेचुरली गंदम की कटाई, लोगों की कंप्लेक्शन देख के पता चल जाता है कि ये कटाई का मौसम। जी जी। और उन धूपों के बारे में मशहूर है कि ये धूप काला कर देती। इधर करीम पार्क में एक गदागर रहता है जो हर साल इंडिया हैदराबाद दक्कन से शादी करके आता है। हर साल एक नई लड़की लेके आता है। अच्छा जी, इत्तफाक देखिए बागी साहब जो बात कर रहे हैं, ये हैदराबाद दक्कन वाली बात मैं बाद में जरूर डिस्कस करूंगा। पहले इसी से मिलती जुलती एक खबर, हमारे यहां से लड़कियां स्मगल हो रही हैं चाइना जी, और पिछले दिनों क्रैकडाउन हुआ है जी। खबर है कि हमारे पास खबर है कि शादी का लालच देकर पाकिस्तानी लड़कियों को चाइना स्मगल करने वाला गिरोह पकड़ा गया। और इसमें कहते हैं एक डीएसपी का बेटा सहूलतकार है जी। ये कुछ चाइनीज हजरात जो हैं वो यहाँ गरीब क्रिश्चियन लड़कियों से या मुस्लिम लड़कियों से कि जी आपसे जहेज़ नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं आपको देना पड़ेगा, आप चलें हमारे साथ, हमारे मुल्क में रहें। तो वहाँ पर जाके जिस्म फरोशी उनसे करवाते हैं, उनके ऑर्गन्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट के काम आ जाते हैं। और इस तरह की खबरें आजकल बहुत। ये जो डीएसपी जिसका तस्करा हो रहा है, गालबन मंडी बहुद्दीन से है जी, उसका बेटा सरगना था इस ग्रुप का। देखिए, और 7-8 चाइनीज पकड़े गए। ये एफआईए ने बड़ा कमेंडेबल काम किया। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें एयरपोर्ट से पकड़ा गया जो भाग रहे थे। हुण तू साडे सोबे ही काम नालों बेहतर नहीं है मंग नू। ही काम और हूं काम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा सर, तो वो डीएसपी का बेटा पकड़ा गया? नहीं, वो हस्बे मामूल भाग गया। 62 लोगों के बेटे कैसे पकड़े जाते हैं? ये हराम का पैसा जो कमाया होता है स्पेंड करके, जैसे ये क्रिमिनल पॉलिटिशियंस नहीं है, बड़ी मेहनत से पाकिस्तान को लूटते हैं, तो फिर उसमें से 10-20% निकाल कर वकला की खिदमत करते हैं और जमानतें करवा के या घरों में बैठते हैं या मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इतने ही प्ली बारगेन से इज्जतदार बने बैठे हैं। प्ली बारगेन में ये 10% भी नहीं देते जो असल कमाई की होती है जनाब। तो जब पैसा कमाना ही मकसद रह गया आफ्ताब, तो फिर उसमें कोई मोरालिटी, उसमें कोई भी काम हो आपके सामने आ जाए आप कर लें। वो पैसा जो मोरालिटी की कॉस्ट पर आप कमाते हैं वो खरबों डॉलर्स की शक्ल में क्यों ना हो, बेकार है, उसमें लज्जत ही नहीं है। और कोई पागल का बच्चा होगा जो गुनाह बेलज्जत करेगा। गुनाह में अगर लज्जत ही नहीं है तो फिर क्यों करते हो? इसका मतलब तुम बीमार हो, तुम्हारा दिमाग एक लूप में जा चुका है, अब उससे निकल नहीं पा रहा कि ये करना ही करना है। जैसे ट्रॉफियाँ इकट्ठी करने की आदत होती है ना, कि जी मैंने ये करप्शन भी करनी है, ये भी करनी है, ये भी करनी है। ज़रा बताना दुनिया को कि मैं कितना कैपेबल था। तो कोई काम ही नहीं, चोरी डकैती ये कोई काम नहीं। बड़ा काम एक कर लो, वो इस जैसे लाख वारदातों से बेहतर। नहीं, आप जाते हुए किसी से ये जो मांगने वाली हैं,
नहीं तुसी मंगण वालियां वाल जांदे हो, मंगण वालियां वाल क्यों नहीं जांदे? और मंगण वाले को भी मैं करता हूँ। एक बंदे को मैंने ये सेंटर पॉइंट, मैंने कहा तू काम कर लेगा, कहता जी 5,000 रुपया होना तो मैं रेडी लगा लूंगा। मैंने उसे 5,000 रुपया दे दिया। मैंने कहा मुझे देख लेना, अल्लाह को गवाह बना के। उसने कहा जी गवाही। आपने पैसा भी ज़ाया किया। देखो कितना आसान था ये, आपने प्रोफेसर तसाहल पसंदी की और इसकी गुंजाइश नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करते, अगर पैसा खर्च ही करना था उसका हक अदा करते, चेक करते वो कहाँ रहता है। 2 दिन मैंने देखा वहां पे नहीं था, तीसरे दिन मैं गुजर रहा हूँ तो वो दूसरे चौक में ना लिबर्टी उधर मांग रहा है। ये बाकी अल्लाह तेरी खैरा करे, मैंने भी 5,000 का लौट दे ना। आप काम छोड़ देंगे ये सारा? 5,000 रुपए ना की बांधा बीबी, तेरा सूट है 5,000 रुपए दा, सही ना दस। अच्छा छोड़े, तुम हमारे घर काम करोगी? चलो यार बात सुनो, ये 5-6 बैठे हैं। काम करवाने मैं को क्यों नहीं करवाना? सैनू भी काम तू मेरे घर काम करे, मां करे ना, झोल मेरे नाल। बल्कि मैं तुम्हें मशवरा दूं, अगर काम करवाना ही है ना तो चौधरी से करवाओ। चौधरी सिर्फ मजा चो सकता और की करे? नहीं ये नहीं, इस जैसे बंदे ये ड्राइवरी भी करेगा तुम्हारी और जबरदस्ती करवाओ इसे। मैं पागल हाँ? एक बार चीज है मेरे को, मेरी बीवी नु कही जाना मेरे घर काम करना है। तो खवातीन घर में काम नहीं करती? तेरे घर नहीं करना है। क्यों मेरे घर क्यों नहीं करना है? तेरा एतबार नहीं कर सकते, तेरी गुफ्तगू बहुत घटिया है। अच्छा उसको लूर लूर लिए फिरते हो, गली गली उसको रुसवा करते हो। ने 2 महीने तेरे घर काम कीता, चंगी रोटी खादी, इंदा कलर कॉपर थी बनने। अच्छा बाकी सब फकीर नहीं देखे ना अजय देवगन बन जाते। और ऐन मुमकिन है इन्होंने वो जो 5,000 दिया है वो किसी फकीर को ना दिया हो। नहीं गदागर को दिया है। जब उनसे पूछे कि तुमने काम करना, वो साफ चिट्टा जवाब देती हैं नहीं। आपकी फीलिंग्स तो बहुत हर्ट होती होंगी। बाकी सब तुसी फकीर ने खुद पहचान दे हो या मशीन के जरिए? रोज जब आप सड़क पे निकलते हैं, सिग्नल पे खड़े होते हैं, फकीर ने देख के कहती हाय मैं मर गई, वो आ गए। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।